डन, फिनिश, ओके। चलो वी विल स्टार्ट विद निंग। निंग डन, सब बता देगा। अच्छा तो इनसे नहीं शुरू करते हैं, रौनक से शुरू करते हैं, रौनक से शुरू करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोला? ये सब बता देगा। अच्छा चलो रौनक से शुरू, विल स्टार्ट विद हिम, ओके। आप 2 पॉइंट्स बताओ। दो ही लिखे बस? ओहो चलो शुक्र, वही बता दो। वो हाँ, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो उसने लिख तो दिया है में। ओके ओके, नाउ रोहित यू टेल। करेक्ट, हाँ, पावर, ओके करेक्ट, ठीक है। यू प्रियांशी? करेक्ट। लिसन, व्हाट पॉइंट्स यू हैव नॉट रिटन वो ऐड करते जाओ, जो दूसरा नहीं लिखा है। आपने तो लिखा है व्हाटएवर पॉइंट्स यू हैव रिटन दैट्स ओके, बट इफ अनदर वन हैज रिटन अनदर पॉइंट्स आल्सो दैट यू ऐड इन योर आंसर पॉइंट, ओके। So you are writing government permission, government policy, right? That is also very important for location of the industry. And now labor code area, skilled as well as unskilled laborers. Labor is also important factor. Next Karuna, you? Transportation, okay, and? सबने बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन, रोल, रेड, मतलब रोड, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स, शिपिंग एंड ऑल, ओके। यू? आयरन, ओके। स्पेसिफिक रॉ मटेरियल में आ जाएगा, ही हैज सेड रॉ मटेरियल, ओके। एनीथिंग एल्स? ह्यूमन रिसोर्स हो गया, चलो ओके। एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम अदर पॉइंट्स? सोबू, whatever they have said, same points? Technology, हाँ, location of the industry is very important. resources should be there. Raw material, हाँ, digital communication, तो okay, digital communication is necessary, that will come in the technology also. Supply and manpower. Food supply? Food supply means मैम अगर मैन पावर्स होगी तो उनके लिए वो मतलब रिसोर्सेज, मार्केट जो उसमें आ गया, बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक सर्विसेज, है ना, हेल्थ विंग, फ्रेश एयर एंड प्योर वाटर, ओके। चलो वी विल कैटेगराइज देम लाइक दिस, ठीक है। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड देम इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, एंड नॉन जियोग्राफिकल, ठीक है। Now can you say what will come in geographical factors for the location of industries? What all? Whatever points you all have given. Okay, correct. Here we can write land, air, water, environment, air, water, what one? Environment we can write pure environment and sustainable environment should be there, okay? That is humans can survive, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। कोई बहुत हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले कंडीशंस में इंडस्ट्री में हम काम भी नहीं कर पाएंगे, वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे। सो सस्टेनेबल एंड फेवरेबल कंडीशंस, ओके। नेक्स्ट व्हाट विल एक ही बात है, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, सेम थिंग है ना। रोड्स मतलब वो जगह भी अच्छी है ताकि हम रोड बिल्ड कर सकें, रोडवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, हाँ आप बताओ। जितने इतने सारे पॉइंट्स बोले, कहीं तो क्लब होंगे ना जो ज्योग्राफी से डिटरमिन्ड होते, कोई नॉन ज्योग्राफी, लोकेशन, फॉरेस्ट फॉर फ्रूट्स। ओके चलो आई विल शो यू अ चार्ट, ओके, देन यू विल गेट मोर क्लियरली। Look at it. Factors for this, geographical factors and non-geographical factors. Okay. Here you can write raw material, power, labor, transport, market, water, and you can write resources. Other thing. ठीक है. Geographical में train, topography. ठीक है. ठीक है. Topography. In place of location you can write topography is the correct word. Okay.
land, labor, capital. Okay, in non-geographical, what are the factors here? Capital. First of all, what you will require? Capital for the investment you will have to make. Then government policies are favorable or not. Okay, if the government doesn't allow that industry to set up, then you can't set up that industry, right? It is important. Okay, industrial inertia means the allied activities, allied services should be there. Suppose for an automobile industry, if you want to manufacture car, other industries should be in proximity also, है ना? Like rubber, labor, है ना? Water supply should be there, power supply should be there. Okay, so industrial inertia मतलब agglomeration. There should be a club of. You must have seen when industry is located somewhere, all the industries are located at one place. Residential place it at single place, है ना? They are differentiated reasons. So because they can have services at one localized position. Okay, so that is industrial inertia means if one industry start slowly major industries at the back of that many minor industries, minor setups also starts. Okay, अब वहीं पे छोटी सी एक दुकान लग जाती है, किसी का बिजनेस क्या कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कोई सामान बेचने का बेच देता है ना, ठीक है. Normal vendors start to sell something to eat and sell. Okay, so slowly whole industrial complex gets developed. ठीक है. Banking facilities, we need capital. For that we can take loan. If you don't have capital, you will go to the institutions and insurance. If so many workers are working, if you are working in an hardest situation or hardest industry, then you should have insurance policies also. So these all are, you can categorize broadly in these sections. ठीक है. So you should write, लिख लो ये completely. ठीक है. Factors. How many sectors are there in Indian economy? Sectors. 3. What are they? Sectors. इसको ज़्यादा डिफाइन करने की डोंट थिंक इसमें ज़्यादा जरूरत है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ओके, चलो. हाँ, दैट्स आई एम कमिंग टू. हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस. व्हाट आर प्राइमरी मीनिंग? व्हाट आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज? agriculture and allied activities. We are the first producers. Okay, secondary. So what are the secondary sectors? What happens? What is happening there? Manufacturing is a sector. What is happening? The resource that is available from the primary sector gets transformed and manufactured into the consumable form. Okay, so manufacturing, processing and construction work comes in the secondary sector. And what in tertiary? Okay, let him. Human wages. Human wages. Why you said human wages specifically? I'm just simply asking what is tertiary sector. Because it's like third entity, and we are focusing on the resources of economy. Keep it very simple, sir. Keep it very simple. Simply we ask about primary, this is secondary. In tertiary are all service providing services. Okay, सिंपल. यूपीएससी ऑल्सो विल आस्क सिंपल सेंटेंस ओनली. अगर उसमें कोई और तिगड़म नहीं लगाएगी कि प्राइमरी में बदल जाएगा, टर्शरी में अलग लाइन से तरीके से आप लिखोगे तो वो अलग मतलब होगा, तो उसको आप सिंपली लिखोगे टर्शरी में क्या होता है. व्हाट वी गेट इन टर्शरी? ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रीज. ऑल सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स आर कमिंग इन द टर्शरी सेक्टर. ओके, लुक एट दिस. कौन सा? बताती हूँ. वेट बताती हूँ. उसी में क्यों फोकस हो आप लोग? वही क्यों जानना है? ठीक है, लुक हियर. टर्शरी के दो सब सेक्शंस हैं, क्वाटर्नरी एंड क्वार्नरी. दैट इज द डिफरेंशिएशन. दिस इज नॉट अनदर सेक्टर नहीं है. क्वाटर्नरी हैज टू सबसेक्शंस, टू सब पार्ट्स, दैट इज क्वाटर्नरी एंड क्वार्नरी. इन प्राइमरी व्हाट इज हैपनिंग? एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज. वी मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस गुड्स. ठीक है, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स, दैट इज माइनिंग, फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज. ठीक है, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री ऑल्सो. ठीक है, इन सेकेंडरी व्हाट वी हैव? प्रोसेस रॉ मटेरियल्स,
Manufacture and finished goods are produced in the secondary sector. What is the example? Production of cars, food and clothing. ठीक है. In third, tertiary, distribute goods and provide services like hairdressing, travel agents, supermarkets. What they are giving? Customer services. ठीक है. To facilitate our optimum utilization of that resource. Suppose we are consuming anything through service supermarkets only, we can easily get them. हमें खेत में तो नहीं जाके लाना पड़ रहा है ना. We can get it from the supermarket stores. In quaternary, it is mainly service related to information based services. Okay? Don't click the pictures in my class. Okay? I don't like this. आपको लिखना है आप लिख लो. ठीक है? If I will say to click, then only. अभी मैं बीच में पढ़ा रही थी, आप फोटो ले रहे हो, है ना? इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज. करेक्ट. नेक्स्ट इज, इसमें क्या आएगा? टीचिंग, जर्नलिज्म एंड बैंकिंग. आई विल गिव यू टाइम टू राइट. ओके, डोंट वरी. ठीक है. ठीक है. इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज मीन्स ए टीचिंग, जर्नलिज्म एंड बैंकिंग चीजें, टेक्निकल चीज दैट इज विद रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड ऑल. नेक्स्ट इज क्वार्नरी. इन दिस व्हाट वी हैव? डिसीजन मेकिंग और हाउस होल्ड सर्विसेज लाइक केयर टेकिंग सर्विसेज, है ना, मदर्स टेकिंग केयर. इसमें क्या आ जाएगा? रेस्टोरेंट्स में कारपेट क्लीनिंग, है ना, जिसमें पर्सनल डिसीजन होता है. ओके, तो वो क्वार्नरी में आ जाता है. Okay, now let's look at this image also. This will also give you clear idea what are the activities come in quaternary and quaternary. ठीक. Here we have in quaternary what we have? Media, financial services, services, education, real estate and robotics. ठीक है, टेक्निकल चीजें हैं. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड. Here quaternary we have NGOs, nursing home, fire services, police services, child care. Getting the differentiation? These are subcategories of the tertiary sector. Okay, clear हुआ? Now you have sufficient content with respect to primary sector, secondary sector and tertiary sector, right? Everything, don't confuse with quaternary or quaternary. What are they? They are not different sectors. Okay, they are just subsectors of this. ठीक. Now you want to write this sheet or first one? Types of industries. This one? Ma'am, next one you will. Anyone? If you want to write this section? Table form, ma'am. Others want to write this. Okay. You want to write? मैम इसमें फिर मैं भी वही बताया था कि हम लेवल देख रहे हैं ना कि किससे ज़्यादा हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, किस रिसोर्स से. जैसे इनकम तो हम प्राइमरी में भी ज़्यादा हो सकती है. इफ़ यू हैव लार्ज लैंड, इफ़ यू आर वेरी गुड एट पोल्ट्री फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, देन यू कैन ऑल्सो जनरेट मेनी इनकम. फार्मर्स आर जनरेटिंग, दोज हु हैव 50 acres of land, will they not earn much enough? Or those who are working 9 to 5 job in service call center? वो डिपेंड करेगा कि जैसे मैं ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन तो दैट इज एक्चुअली ये कि हम माइनिंग में हम उससे एज कम्पेयर ज़्यादा ही लेंगे, या फार्मिंग हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं उसकी. क्लियर करो कैसे ज़्यादा, कहाँ? विद रिस्पेक्ट टू मनी यू आर टॉकिंग और विद रिस्पेक्ट टू पर्सन? विद रिस्पेक्ट टू मनी. मनी यू कांट स्पेसिफिकली डिटरमाइन कि इस सेक्टर में ही ज़्यादा पैसा है. आप ये कहना चाह रहे हो ना? कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसा है? मैं बताता हूँ सिंपल. हाँ. जैसे माइनिंग में आप सीमेंट ले लो, मेरे पास फैक्ट्री है, तो सीमेंट बना के मैं मार्केट तक ले जा रहा हूँ, मार्केट के बैग्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ और ज़्यादा ही मैं मनी अर्न करूँगा. अगर मान लो आपका सीमेंट बेकार निकला, क्वालिटी बेकार लगी, तो आप मार्केट में फेल भी कर सकते हो. नहीं, मैं बैकअप बनाऊँगा. इफ यू हैव दैट कैपिटल, तभी आप इतना इन्वेस्ट कर पाओगे. थिंक अबाउट समबडी हु डजंट हैव दैट कैपिटल. मैं प्रॉफिट के टर्म से बात कर रहा हूँ. प्रॉफिट के टर्म्स, आप डायरेक्टली प्रॉफिट पे क्यों जा रहे हो? हम तो जनरल टर्म में देख रहे हैं ना यहाँ पे. आप होलिस्टिकली कैसे कह सकते हो कि सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? यू ऐसे नहीं कह सकते. हाँ, जैसे मैं एक सिंपल डीलर है मार्केट में, हाँ. सीमेंट्स बैग्स को सप्लाई करने के लिए, और एक नई इंडस्ट्री है मेरी, तो मैं ज़्यादा उससे प्रॉफिट लूँगा क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल. दैट इज योर बिजनेस, है ना. ठीक है, तो जनरलाइज जीडीपी का डेटा देखा था, कहाँ से आया था? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या सर्विसेज, किस सेक्टर से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है? जीडीपी में हाउस होल्ड से सबसे. जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी होता है, कौन से सेक्टर से? प्राइमरी से, सेकेंडरी से या टर्शरी? कौन, तीनों में से किस सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या रहता है? प्राइमरी को सर्विस. दिस सेक्टर, सर्विस सेक्टर.
ठीक है, इसका नेगेटिव में जाता है। अगर Q3 का आप डेटा देखोगे, कभी कभी -8 भी था, कभी 1 भी जाता है, कभी कभी ये 10% देता है, कभी ये 15%। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर्विस सेक्टर। ऑल्दो 50% 60% ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, स्टिल इट इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी लेस टू दिस जीडीपी। हम जीडीपी ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं। दैट विल डिटरमाइन हु इज अर्निंग हाउ मच और विच सेक्टर इज लर्निंग। यू आर टॉकिंग इन पर्सनल टर्म, आप पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हो। ये आई ओके, क्योंकि मैं इसमें तो जनरल, ये हम जनरल देख रहे हैं, आप पर्सनल लेवल पे। जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ से ट्रेड कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिटेबल हो, दूसरे के लिए नॉन प्रॉफिटेबल हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वेरी सब्जेक्टिव यू आर टॉकिंग, यू आर नॉट टॉकिंग एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, यू आर टॉकिंग इट वेरी एट अ मिनिस्कुल माइक्रो लेवल। आप अपने पर्सपेक्टिव पर देख रहे हो कि इफ यू आर सेलिंग अ कमोडिटी यू आर अर्निंग प्रॉफिट। इफ somebody having a poultry farm having thousands of eggs, है ना, he can sell in the market, he will earn profit, huge profits, है ना, he will also earn profits, है ना। तो जरूरी नहीं कि उसका प्रॉफिट आपसे कम हो, आपसे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है तो वो अच्छे से राइस, वीट सब कुछ ग्रो करेगा। काफ़ी कमोडिटीज़ हैं मार्केट में, आप जरूर खरीदोगे, ऐसा तो है नहीं आप दाल चावल खरीदोगे नहीं, है ना। तो ज़रूरी थोड़ी कि आपसे कम प्रॉफिट, आपसे ज़्यादा प्रॉफिट भी वो बना सकता है ना। वो भी बिजनेस की तरह ट्रेड करेगा मार्केट में। फार्मर्स भी आजकल एज अ बिजनेसमैन दे आर वर्किंग, दोज आर लार्ज बिग फार्मर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग फार्मर्स नॉट स्मॉल फार्मर्स। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये हमने जो कैटेगरी बनाई है इंडिपेंडेंट है। आपने जैसे बताया These are generalized, categorized activity on the basis of category work they are what we are doing. ये sectors defined हैं कि क्या काम किस सेक्टर में हो रहा है। जैसा कि आपने बताया टर्सरी ने सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया, हाँ। तो वहाँ डिपेंड हो गया ना कि कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस ईयर में और सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है नेशन को। हाँ, तो यानी कि अब तो फिर तीनों इक्वली इंडिपेंडेंट का सब तीनों इंडिपेंडेंट, इंटर रिलेशन तो हर इंडस्ट्री का है ना आपस में। जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है क्या वो फूड क्लोथिंग बाय नहीं करेगा? दैट विल बाय द फूड, राइट? इट विल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, इट विल बाय फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर इनडायरेक्टली, राइट? सो आप आइसोलेशन में नहीं दे सकते कि तीनों सेक्टर आइसोलेशन में वर्क कर रहे हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर या सीमेंट ही बेच रहे हो तो आप फल तो खेतों का ही खाओगे ना, सब्जी खरीदोगे मार्केट से, तो इनडायरेक्टली यू आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। Interlinkages are there within, but we are talking with respect to the work which is happening within each sector, type of activities which is happening in the each sector. Getting the difference? We were not talking about with respect to money or how much which profession is earning, ठीक है? That is very subjective and depends on person to person. Getting? किसी और को कुछ डाउट? Outsourcing means some work which you can do but you are getting it done from the other people. Outsource कराना, जैसे आपको ये आंसर लिखना है बट आप खुद से ना लिखो, आप किसी दूसरे बंदे से करवा रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ओके, BPO होते हैं ना, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग मीन्स द वर्क विच कुड बी डन बट यू हैव हायर्ड पीपल टू डू इट फॉर यू। ठीक है, सपोज कि घर में खाना बनाना है, आप ना बना के या मम्मी ना बना के किसी को बनवाने के लिए रखा है, तो यू आर आउटसोर्सिंग दैट वर्क। ठीक है, somebody else is coming and doing it for you। तो डॉक्टर ऑफ इंडिया, कौन? डॉक्टर ऑफ इंडिया वर्किंग इन, हाँ, वर्किंग इन यूएसए, हाँ, एग्जांपल ऑफ, मतलब वो तो उसका प्रोफेशन हुआ। अगर हम कुछ काम कराना है इंडियन गवर्नमेंट को, वो किसी और को बुला के करवा रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए और उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट भी इन्वॉल्व होगा, मनी इज इन्वॉल्व। हाँ, डॉक्टरी का ये टर्म है कि इंडिया में डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं ना, तो बाहर से लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पे। दैट इंडिया में ये हो रहा है। इंडिया कुछ डॉक्टर्स जाके बाहर भी रहते हैं, दैट इज़ ब्रेन ड्रेन, वो वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। So that is they are getting and settling in other countries, developed nations. So they are serving their people, वहाँ के लोगों को people को सर्व कर रहे हैं ना। आउटसोर्सिंग तब होता है जब वो अपना काम किसी और से करवाते हैं, ये सिंपल मीनिंग है। अगर डॉक्टर खुद ना टीके लगा के क्या कर रहा है, किसी और से लगवा रहे टाके, तो वो आउटसोर्स करवा रहे हैं। इसमें हाँ, ऑब्वियसली if someone is doing work for you then you will get, हाँ बोलो। That is economic activity. If there is any economic activity, that will be related to earning or not earning. हाँ, 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 नहीं वो सिंपल समथिंग यहाँ पे आउटसोर्सिंग पे आप लिख लो, सिंपल
सिंपल वही है कि अपना काम किसी और से सर्विसेज कराना। बैंगलोर में जो कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज हैं, इन्फोसिस वगैरह, ये क्या करते हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, व्हाट दे डू, दे आउटसोर्स देयर वर्क टू इंडियन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। दैट इज हैपनिंग, दैट जो बाहर के देश है वो क्या कहते हैं, आप हमें ऐसा ऐप डेवलप करके दे दो हमें। तो बैंगलोर, हैदराबाद, जो साउथ इंडिया के जो इंजीनियर्स है, कंप्यूटर साइंस है, जो बहुत ग्रो हुआ है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर जो है, वो क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि बाहर से उनको प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाहर वाले डेवलप नेशंस व्हाट दे से कि यू कंप्लीट दिस टास्क, यू क्रिएट एन ऐप फॉर अस, वो क्रिएट अ डेटा फॉर अस एंड वी विल पे यू अकॉर्डिंगली। ओके, सो वी इंडियंस आर डूइंग दैट वर्क। हम कंप्यूटर पे बैठ के बहुत सारे फंक्शंस करके वैसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, वैसे डेटा एनालिसिस करके उनको प्रोवाइड कर रहे हैं हम डेवलप नेशंस को, है ना। तो हम क्या मैकेनिकल वर्क करके ऐप्स बना के या जो भी उनको डेटा चाहिए, जो भी ऐप चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग देम, सो वी आर आउटसोर्सिंग देम। वो अपना काम आउटसोर्स करा रहे हैं इंडिया से वो काम ले रहे हैं, और उसके बदले व्हाट दे डू, दे गिव अस मनी, दे गिव अस पेमेंट। ओके, आर यू गेटिंग, यू बोथ, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, है ना, यू गेटिंग मी और थिंकिंग, व्हाट थिंकिंग, what you are in deep thoughts, I guess. So is it clear? I think this is very simple. Okay, Yes. 3 sectors of the economy, right? Chalo, this section is complete. Now we will look at, once we will not neglect the Antarctica also. Okay, so we will do the Antarctica continent. Just we will have a look at that. मैम इसमें तो सारी टर्म्स आए थे जो इकोनॉमिक हिस्ट्री। हाँ, geography is very interesting, very comprehensive, very lengthy syllabus, but it's good if you understand geography of any place, geography, economic geography, you will be able to understand history also, polity also, international relations also. That will help in understanding the other domains of studies. So geography is very, very important. It is a semi-scientific, you can say, not pure science. It is not considered as pure science, but similar to that. Okay, South Pole, this is the, so Antarctica. Okay, this is called the white continent, and it is because it is covered with ice all the year around. Okay, it is the 5th largest continent and it is also known as white continent. It's like it's a desert. It's Antarctica. White desert. This is a cold desert. It is called a cold desert. Desert means there is a dryness, so here the air which is prevailing over the South Pole is very dry, है ना. It is very difficult for the humans to survive at the Antarctica. Okay, so what are the boundaries surrounding this Antarctica? What we do first, boundaries surrounding Antarctica, which water bodies can you see? Which is this line? Arctic Circle, right? This is Arctic Circle. Okay, what is Southern Ocean? Ronak, what is Southern Ocean? Water bodies beyond 60 degree are Southern Oceans. ठीक है, so Antarctica is located in the Southern Ocean only. This is Arctic Circle is at 66.5 degree. This is the 60 degree latitude. Okay, this, can you see this? So this is located in which ocean? That is Southern Ocean. It is enclosed by the Southern Ocean. 2 seas you have to remember with respect to Antarctica. This is, one is Ross Sea, first one, and second one here Weddell Sea. Ross Sea and Weddell. I am writing here Ross. Water body is Ross Sea first, and second one is Weddell. Mark it in your atlas, and if you want to notes में आप लिख लो, ठीक है. Animal? Okay. अच्छा, you tell which animal. Penguins are also found. Some penguins and polar bears. Polar bears very limited. It's very difficult to survive here. है ना? So penguins are there. I used to confuse because I checked that Greenland. You checked what? That Greenland. There is many green trees. So I was just thinking Greenland. There is Greenland. अच्छा, Greenland. Okay, okay. There is no any green tree.
अच्छा अच्छा, so no not with respect to green trees, that is location will divide the, tell me what type of plant species or animals are surviving there. ठीक है मिला, this is the Weddell Sea. ठीक है, everyone got. दूसरा Ross Sea. There is a single peninsula, what you can see here is the Antarctic Peninsula. One peninsula, that is Antarctic Peninsula. There is a mutual agreement between the countries that no one will colonize this continent. Okay, it is only specifically left for research purpose. Okay, Antarctica is left for only research and scientific studies. Okay, so it is a mutual agreement between all the nations that we will not colonize or do any human activities. We will not pollute this continent. Okay, this is the mutually agreed. Mark this Antarctic Peninsula. Okay. Acha, here you see which island, which pass was here in this map. We studied here, one passage was there. This Falkland Islands, you remember, with respect to this Falkland Island, you remember? This is which continent? What? South America. Okay, remember the location, this Falklands. Remembering which passage was there? I dictated here. Which passage was there? Drake Passage. Drake Passage. ठीक है, getting this? This is the 60-degree southern ocean. This is Ross and Weddell. Getting the location where it is located from surrounding here you will see Australia, Tasmania, we have studied, and New Zealand. ठीक है, and this side what we have? Africa and Madagascar. So location is getting clear where Antarctica is located. In this is South America, here it is Africa, here it is Australia. Below that there is Antarctica in the southern pole, South Pole. ठीक, मैडम ये जो स्ट्रक्चर है ग्लोब का, ये ऐसे है ना कि कैसे मैं इसको बताऊं, जैसे नॉर्थ है साउथ, हाँ ये नॉर्थ है साउथ, तो इसमें ये वाला देख रहे हैं हम साउथ में, जैसे ऐसे है ना नॉर्थ और साउथ। हाँ, इसमें एक्सिस। साउथ में ये वाला देख रहे हैं। हाँ जी। धूप कम आती है। हाँ, अंटार्कटिका के बाद। हाँ जी, हम ये वाला भी देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ग्लोब का नीचे वाला पोर्शन, दैट इज द ग्लोब का नीचे से हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो, what else we have to remember here? You have written this. Mark the peninsula. Another this way, Antarctic mountains. One, Trans-Antarctic mountains. Trans-Antarctic. There is a single mountain chain. Trans-Antarctic mountains. One peak is also there. Peak, Vinson Massif. ये याद रखना, Vinson Massif. 4897. Vinson Massif is famous. They ask in the exams where it is located. This Vinson Massif. ठीक है. What? This is one peak. Vinson. V-I-N. Vinson Massif. This is a peak with height 4897 meters. Okay. Seriously? Vinson Massif का? So they must have found it again. शायद चेंज हुआ होगा. इस 5140. अच्छा, कोई सोचेगा ये क्यों ऐसे चेंज हुआ? अच्छा बताओ, पहले मैप में ये 4897 है, सोचो क्यों हो गया 51. अब हाइट इसकी और ऊंची दिखने लगी है, हम मेजर और कर पा रहे हैं, क्या हुआ? हाँ, क्लाइमेट चेंज इज द रीजन. ओके, ग्लोबल वार्मिंग, आइस शीट मेल्ट हो रही है ना? अब बताओ, वही तो मैं सोच रही हूँ कैसे होगा, पर ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्टर व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, क्योंकि मेरे मैप में देखो यहाँ पे 4897 है, इट मीन्स इट मस्ट हैव चेंज, कुछ तो हुआ होगा. प्लेट टेक्टोनिक
टेक्टोनिक्स इज ऑल्सो वर्किंग. प्रोबेबल कुछ भी रीजन हो सकता है. प्लेट मूवमेंट ऑफ हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इज टेकिंग प्लेस, है ना. अंटार्कटिका इज ऑल्सो मूविंग लिटिल बिट, है ना. सो इट माइट हैव मूव्ड अ लिटिल बिट, शिफ्टेड अ लिटिल बिट, राइट, बिकॉज ऑफ हिमालयाज आर ऑल्सो राइजिंग. क्यों राइज कर रहे हैं ना, प्लेट्स दोनों कोलाइड कर रहे हैं, हिमालयाज आर राइजिंग, ठीक है. और क्या पता दोबारा मेजरमेंट की हो गई हो तो नया डेटा सामने आया हो, है ना. सो दैट कुड बी ऑल्सो अ रीजन, ठीक है. जैसे हमने एवरेस्ट को किया तो 0.88 और एक्स्ट्रा हाइट निकल के आई थी. व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 4 point additional it was find out, additional 0.884 was added in last year, okay. So new measurements, new techniques are there to measure the height of the peaks, okay. So that could be also probable reason. Plate tectonics could also be a reason, and this climate change could also be a reason, okay. क्या पता आइस मेल्ट हो रहा होगा, continent must be getting lifted, है ना, कुछ भी हो सकता है. So this could be a probable reason. चलो, this we have done. One land you mark this Marley Baird land, ठीक है. अच्छा, this trans-Antarctica mountains is what it did. It divided the whole Antarctica in two parts. Here there is a West Antarctica and here it is East Antarctica. Two parts of the Antarcticas. Look at the differentiation. This is the trans-Antarctic mountains. This is dividing the whole Antarctica into two parts. First is West Antarctica and this is the East Antarctica. Because of global warming, in news they can come that some of the shelves, ice shelves are melting. So that you remember, in case in news comes that this ice shelf is melting or this ice shelf is melting, so आपको location with respect to that news you will have to remember, okay? क्योंकि एक बार news में it was coming that this some ice break, this Ronnie ice shelf or some shelf was there that started to melt because of global heating, okay? Because of climate change. So that you will have to keep in mind. ठीक है, गेटिंग द डिफरेंशिएशन. ये तो अच्छा, यहाँ पे इंडिया की कौन सी इसमें बस एक ही याद, हाँ ज़्यादा नहीं पूछ. इससे जो विंसन मैसिव से ऊंचा है कोई नहीं है ना. इससे कुछ कोई ऊंचा है तो बताओ. अगर कोई ऊंचा है तो दैट वी विल मेंशन, ओके. दिस इज द हाईएस्ट पीक दैट वी कैन मेंशन और 5140. इफ देर इज एनी अदर पीक विच इज नॉट मेंशनड, आई हैव नॉट मेंशनड हियर, और इट इज मोर इन हाइट, देन दैट वी विल रिमेंबर, ओके. कौन से 3-4? मैं हाइट के बारे में, और कौन सा हाइट या पीक है जो इससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा कोई नहीं है, तो हम हाईएस्ट पॉइंट, हाँ बोलो. कौन सा माउंटेन है? सिड लेक क्या हाइट है उसका? तो कम है ना. तो कितना हाइट है? पीक दीजिए. हाँ, तो क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट होगा ना. हाँ, तो छोटे छोटे तो कहीं भी हमारे अरावलीज में भी जाओगे या वेस्टर्न घाट्स में जाओगे तो छोटे छोटे तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं. बट हम क्या मेन इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट पीक को याद कर रहे हैं ना. इन एशिया, अफ्रीका वी रिमेंबर्ड ओनली द हाईएस्ट पॉइंट्स, ओके. वैसे तो चाइना एंड रशिया दे आर हैविंग मेनी पीक्स. इन साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज मेनी पीक्स, राइट. स्मॉल एंड रेंजेस तो बहुत सारे थे वहाँ पे, है ना. एंडीज माउंटेन्स, एटलस माउंटेन्स, बट वी रिमेंबर ओनली दी हाईएस्ट पीक विद रिस्पेक्ट टू दी कॉन्टिनेंट्स, ओके. गेटिंग द डिफरेंशिएशन. इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें लिमिटेड ही पढ़ना है, ठीक है. अंटार्कटिका में हाँ, अभी मैं वही पूछ रही थी कि इंडिया की कौन सी रिजर्व है, यहाँ पे लेबोरेटरी है. सर्च करो इंडिया के नाम से. कंट्रीज एग्रीड दैट वी विल नॉट कॉलोनाइज द, हाँ, मैत्री हिंदी वर्ड है मैत्री, ठीक है. हियर इट इज there is a Maitri, okay. India, all the countries are having their laboratories in the Antarctica. गंगोत्री और मैत्री भी है. What has happened? एक अब फंक्शन नहीं कर रहा है इनमें से. गंगोत्री is not functional yet. तो another was developed scientific station, that is Maitri now. अब दोनों